کل خدا بھی سنا گا جد کرے گا کلام میں کل خدا بھی سنا گا جد کرے گا کلام کہ روتے اپنے بندے آنا پاگلوں کا کہ روتے اپنے بندے آنا آسمانی باپ شکر گزار ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے. تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. آج کی شام جب ہم تیرے کلام پر دھیان لگاتے ہیں اپنے کلام کے وسیلے سے اور رسودہ کر, شفا بخش, بحالی عطا کر, تسلی اور تشفی عطا کر تاکہ ہماری روحیں, ہماری جان تیرے کلام کے وسیلے سے. ہم یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین. آمین. میرے عزیزو, کتنے لوگوں نے اواتار مووی دیکھی ہے؟ آلموسٹ سب نے. ورچولی اواتار آپ نے دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس اواتار مووی کے اینڈ میں جب وہ جو ہیرو ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ Where they took him? Anybody remember? کسی کو یاد ہے؟ Where did they took There was a tree of life. ٹھیک ہے. اس کو جب وہ اواتار بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ایواتار مووی, ٹھیک ہے. اسے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ وہ جو ٹرانسفارم ہوا ہوتا ہے اس کو اس ورلڈ کے اندر جو ان کی اواتار کی جو ورلڈ ہوتی ہے اس میں وہ ایک ریچول کرتے ہیں اور وہ درخت کی جڑوں کے ساتھ اسے کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی ہی ٹرانسفارم وہ فزیکل ورلڈ سے ورچوئل جو ان کی انویزیبل ورلڈ ہوتی ہے وہ اس میں اس درخت کی جڑوں کے وسیلے کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دین ہی ٹرانسپوز ٹو دیٹ ورلڈ تھرو دا پاور اینڈ دا لائف اینڈ دا لائٹ تھرو دیٹ ٹری آف لائف. ٹھیک ہے. چاہے وہ ہالی ووڈ کی مووی ہو, ٹھیک ہے, یا پوری دنیا کے ہولی اسکرپچرز ہوں یا سیکرڈ اسکرپچرز ہوں, مینوسکرپٹس ہوں. Tree is very important and tree has a great role to play in all the ancient religions. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے ایک اور دیکھا لارڈ آف دا رنگس کے اندر بھی انہوں نے اس کا یوز کیا ہے. اور لارڈ آف دا رنگس کے اندر جو ایک فائنل بیٹل ہوتی ہے اور اس فائنل بیٹل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹاکنگ ٹریز ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ. وہ جو ہابٹس ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دیٹ ایپیسوڈ وہ ہابٹس ان درختوں کو لے کر آتے ہیں فائٹ کرنے کے لیے. وہ جو سارے ایولز اور جو سارے جتنے وہ تاریکی کے لوگ ہوتے ہیں, عجیب عجیب مخلوق جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ وہ ٹریز جو ہوتے ہیں وہ دور دور سے بڑے بڑے بولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں, اینڈ they were walking and they were marching on the while they were hiding in the tree branches. اور وہ سارے درخت کیا کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹری سارے ویک اپ ہو جاتے ہیں. So that's how we see that. دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ہالی ووڈ کے اندر نہیں, جیسے میں نے کہا, بلکہ ہندوازم کے اندر بھی, ہندوازم کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹرینٹی ہے ہندو دیوتاؤں کی, جس میں برہمن جو سب سے ٹاپ پر ہے, اس کے بعد وشنو جو کہ بدی کا دیوتا ہے, اینڈ دین دا شیوا جو کہ اچھائی کا دیوتا ہے. دی ہول ٹرینٹی دے ریپرزینٹ تھرو اے ٹری ان دا ہندوازم. نہ صرف ہندوازم کے اندر بلکہ گوتم بدھا, سدھارتھا جو کہ بدھا, جس سے بدھ مت بدھزم نکلا ہے, بدھ مت کے گوتم بدھا کے بارے کہا جاتا ہے ہی گاٹ نالج اینڈ نروانا انڈر دا فگ ٹری. اور وہ اس انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر when he was meditating تو اس نے جو گیان تھا, جو اویکننگ تھی, وہ بدھا کی ہوئی. اچھا دلچسپ بات ہے صرف ہندوازم کے اندر نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر بھی. قرآن کا جو چیپٹر 95 ہے, اٹس اے مکن سورہ. The title of that surah is fig, انجیر. اور اس
उस आयत उस वो जो कुरान शरीफ की जो चैप्टर 95 है उसके अंदर 2 दरख्तों का जिक्र किया गया है, अंजीर का और जैतून का, ऑलिव एंड फिग ट्री। दैट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है कि ये दुनिया के जितने कदीम मज़ाहिब है, वेदर इट्स हिंदुइज्म, बुद्ध मत और द इस्लाम, उन सबसे कदीम जो है वो जुडाइज्म है, ठीक है, जो कि रिटन हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखेंगे तो फिग ट्री हैज अ प्रोमिनेंट रोल टू प्ले। ना सिर्फ फिग ट्री बल्कि ऑलिव ट्री है, फिर साइकामोर ट्री है, मतलब देयर आर सर्टेन ट्रीज। और जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम चूंकि आज फिग ट्री की बात करेंगे, अंजीर के दरख्त की बात करेंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसराइल को खुदा ने कहा है कि इज़राइल इज माय ऑलिव ट्री। सो इज़राइल को खुदा ने क्या कहा है, कौन सा ट्री का नाम दिया है? ऑलिव ट्री। ठीक है, ऑलिव ट्री पे फिर कभी बात करेंगे। आज मैं जो आपका फोकस यहां थोड़ी देर के लिए मैं गौर और फिक्र आपको देना चाहता हूं वो है अंजीर का दरख्त, फिग ट्री। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस? न्यू टेस्टामेंट के अंदर फिग ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे यूहन्ना की इंजील जब खुदावंद यीशु मसीह जो फिलिप है वो जब लेकर जाता अपने भाई नतनएल के पास, नथानियल के पास, यूहन्ना की इंजील दूसरे पहले बाब के अंदर है, और वो कहता है जी कि उससे कहता है कि तुझे पता है कि हमें मसीह मिल गया है, क्रिस्तस। वो कहता है वी फाउंड क्रिस्तोस, मतलब हमें मसीहा मिल गया जो आने वाला मसीह था, वी फाउंड इट। वो कहता है अच्छा कहाँ का, पहले मुझे बताओ। कहते अपना इलाका दस किथों है। वो कहता है नासरत का। कहता है छाड़ पना यार, नासरत भी कुछ चाहिए शायद। कहता है नासरत से क्या अच्छी चीज निकल सकती है, ठीक है। That was the statement। वो समझ रहा था कि यरूशलेम से, किसी बड़ी जगह से या किसी मशहूर जगह से कोई बंदा आएगा, मसीहा आएगा, ठीक है। वो कहता है नासरत, ओ छाड़ पना यार, वो भी तो इलाका जाना था, ठीक है, वहां से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, ठीक है। वो कहता है नहीं वाकई मिल गया है। तो देन ही इंट्रोड्यूस्ड नथानियल टू जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह उसको कहते हैं यू आर अ ट्रू इज़राइलाइट। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू वर सिटिंग अंडर द फिग ट्री आई सॉ यू। ओहो, वो नथानियल की तो वहीं पर उसके हाथ पैर फूल गए। कहने लगा तू यकीनन जो है ना, यू आर द मसाया, क्योंकि मैं तो तुझे मिला जिंदगी में पहली बार हूं, एंड यू हैव सीन मी बिफोर इवन मीटिंग विद मी। तो वो वही कायल हो जाता है, ही कन्विंस कि यीशु मसीह क्या है, ही इज द क्राइस्ट। दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग के अंदर और खासतौर पर 2 बड़े सब्जेक्ट को ट्रीट किया है विद द पैराबल ऑफ द फिग ट्री। और वो 2 बड़े सब्जेक्ट क्या है? जजमेंट एंड एंड टाइम। कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने बताया जी? जजमेंट। लेकिन जजमेंट किन की? ना सिर्फ खुदा के लोगों की, इसराइलियों की, बल्कि नेशंस की जजमेंट जो है, पूरी दुनिया की। इट कनेक्टेड विद द फिग ट्री। और खुदा यीशु ने पैराबल कैसे इस्तेमाल की, ठीक है। जो आज का पहला रेफरेंस मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में है। और अगर आप देखेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं 12वें बाब में लिखा है हजारों आदमियों की भीड़ लगी, देयर वाज अ होल क्राउड, इट वाज क्राउडेड। यीशु मसीह जहां भी जाते थे क्राउड वर जस्ट देयर, दे वर जस्ट देयर। जिसमें कुछ लोग होते थे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, कुछ थे जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, कुछ मौजों के लिए आते थे, कोई रोटियां खाना होते हैं, उनका फ्री रोटी ला भी चलो चलिए। तो ये बड़ा सीन होता था वहां पर। तो लिखा है एक दूसरे पर गिरा पड़ता था। उसने अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया, सो खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को वार्न कर रहे हैं, बी अवेयर फ्रॉम द यीस्ट और द खमीर ऑफ द फैरिसीज अबाउट द टीचिंग, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत लंबी टीचिंग सेशन है, लेकिन जो हमारा कंसर्न रेफरेंस है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अभी टीच कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, और यीशु मसीह को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक इतला दी जाती है। और क्या इतला है? 13वें बाब के पहली आयत में लिखा है जी कि लोग गलील, सो गलील का मतलब ये है जी कि इट वाज अ रफ एंड टफ कंट्री साइड, ठीक है। अगर हम अमेरिका में किसी शख्स को कहें जी कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा जनाब वेल सिविलाइज्ड बंदा है, तो वो कहां रहता होगा? क्या ख्याल है? Irvine हो गया, those bigger areas। ओके, मतलब जो अमेरिका से बाहर लोग रहते हैं, अगर उनको बताना हो कि जी कि ये बंदा अच्छे सिविलाइज्ड सोसाइटी का मेंबर है, तो कहां रहता है ये? हाई हाई मतलब बड़े बड़े शहरों के नाम, सिटी बॉयज, सिटी गर्ल्स, ठीक है ना। मतलब ये लिव्स इन न्यूयॉर्क, यहाँ जी अगर ये कैलिफोर्निया में रहता है तो लाजमी जी बेवर्ली हिल्स और जनाब इस किस्म के इलाकों में, यहाँ जो अच्छे हाई फाई किस्म के इलाके हैं। एंड लोग एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि जी अगर बंदे को उन्हें बताना जी कि बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा हार्वर्ड, ठीक है,
या कैलिफोर्निया के अंदर कौन सी बड़ी सी यूनिवर्सिटी है जहाँ लोग जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स? UCI, UCLA, UCLA, ठीक है, और क्या है वो सैन फ्रांसिस्को में कौन सी है? Berkeley. बर्कले, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो जाना चाहते हैं ताकि उनके नामों के साथ क्या लगी हो, ठप्पा, बड़ी जगह जनाब, सोफिस्टिकेट, जैसे मुझे मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि मैं फुलर आके पढ़ूंगा, वो तो मुझे बाद में पता चला गया की बुलावे जब मेरा एडमिशन हो गया बाद में मुझे पता चला मैं कितने आ गया, ठीक है, लोग कहते कैलिफोर्निया की करंट गए हो, किमेट गए हो। सो एनीवे, सो मतलब ये कहने का कि वी ट्राई टू गेट titles or the degrees in our name which give us respect and a status in the society, ठीक है। तो गलील के बारे ये समझा जाता था ओ पिंड था मेरा छड़ो का, ये ऐसे है कि बंदा हमारे पाकिस्तान इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यानी पेंडू आया है यहाँ, पेंडू नहीं पता, इसका एक्सेंट ठीक नहीं, तो गल भी नहीं करनी होती, ठीक है ना, मतलब दैट वाज द कांसेप्ट अबाउट गलीलियंस, ठीक है। सो खुदावन यीशु मसीह की जो आमद थी, क्योंकि नासरत एंड बैतलहम ये जो छोटे एरियाज थे दे वर ऑल माउंटेन रेंज, और लोग वो थे जो कि वहां पर मोस्टली रिबेल थे, मतलब वो लोग थे जो रोम के खिलाफ चढ़ाई करते रहते थे। मतलब ये ऐसे ही है कि बंदा कहे जी कि ये बंदा जो है ये तालिबान से आया हुआ है, ठीक है ना, तो फौरन हम लोग क्या हो जाएंगे, हो भाई तालिबान का नाम नहीं लेना, ठीक है ना। हालांकि बाइबल मुकद्दस साफ कहती है खुदावंद के तालिबों की मिरास ही है, मतलब तालिब लफ्ज जो है मतलब ऐसा शख्स जो क्या हो, डेडिकेटेड हो to his cause or her commitment to a kind of any mission। तो गलीलियों, वो कहते हैं जी कि गलीलियों का खून पिलातुस ने यानी गवर्नर जो था, क्योंकि मोस्टली जो इंसर्जेंसी रोम के खिलाफ उठती थी वो कहां से उठती थी, गलील से, ठीक है। जैसे आज भी अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में क्या चाहिए, मतलब 20 साल होने वाले हैं, स्टिल अमेरिका इज स्टक, अमेरिकन आर्मी स्टक इन अफगानिस्तान, नाउ दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग देम आउट, ठीक है, थ्रू पीस टॉक और मुख्तलिफ तरीकों के वसीले से, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कि रोमन्स जो थे, इवन जो आखिरी फाइट लड़ी गई सन 70 में यरूशलेम की तबाही बर्बादी से पहले, ठीक है, दैट वाज फाइट एट मसादा, एंड मसादा स्टिल टुडे अगर आज आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, मसादा वाज द लास्ट रिजोर्ट, और वो नॉर्दर्न पार्ट के उस इलाके में था जहां पर ये गलीलियंस उन्होंने अपने क्या की थी, अपनी इंसर्जेंसी शुरू की हुई थी, ठीक है। सो उन्होंने कहा जी कि पिलातुस ने उनका खून, वो कुर्बानी गुजरानने आए थे, लेकिन पिलातुस की जो स्पाई थे उनको शक पड़ा कि ये यरूशलेम में आए हैं एंड दे विल ओवरटर्न द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जो स्पाइज हैं उन्होंने क्या किया, वो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे मस्बे के ऊपर, हैकल के अंदर। पिलातुस की जो सीक्रेट सर्विस थी, जो सिपाही थे, उन्होंने उनके बकरों बड़ों के साथ, बछड़ों के साथ उनके भी गर्दनें क्या कर दी, काट दी। सो उनका जो ब्लड था वो उनकी कुर्बानियों के साथ मिक्स होकर तो वो क्या हो गया, मस्बे के ऊपर, ठीक है। यीशु मसीह को इत्तला दी गई तो उन्होंने कहा जी उनका खून उनके कुर्बानियों ज़बियों के साथ ही मिल गया है। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, जो उनको टेरिबल किस्म की उनकी डेथ हुई है, उनका मैसकर हुआ है, वर दे मोर सिनर्स देन द कॉमन पीपल, ठीक है। आप देखें अगर किसी का टेरिबल एक्सीडेंट हो रही है, या किसी घर में चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई बंदा कोविड-19 का शिकार, आज कोविड-19 तो आम हो गया है, लेकिन कोई कैंसर हो जाए या किसी ईमानदार का, सबसे पहली हमारी टेंडेंसी क्या है एज अ ह्यूमन, कि यकीनन इस बंदे ने कोई ना कोई पैड़े काम किए होंगे, यकीनन जो इसको क्या मिल रही है, गुनाहों की सजा मिल रही है। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम सबसे पहले क्या चीज ढूंढते हैं कि यकीनन इसने कोई ना कोई क्या किया होगा, गुनाह किया होगा, उसकी सजा से मिल रही है। यीशु मसीह ने इस थॉट को ड्रॉप किया है, क्या ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या तुम्हारे दानिश में ये बाकी गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? जवाब क्या आया, नो, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो उन बेचारों के साथ ये हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, वो टेरिबल उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो अगर तुम भी तौबा ना करोगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिपेंट, यू विल बी कॉट इन सच काइंड ऑफ इंसिडेंट एनी टाइम। दैट वाज द रीजन। देन ही गेव अनदर एग्जांपल, ने कहा या वो लोग जिन पर शलौक का बुर्ज गिरा, सो देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, ठीक है, क्योंकि आपको पता ना कि यीशु मसीह के दौर में हैकल अभी क्या हो रही थी, दैट वाज सेकंड टेंपल, याद रखेगा। पहला टेंपल तो बाबलोन ने तबाह बर्बाद कर दिया था ना, जो सुलेमान ने बनाया था। Then they were 70 years in the captivity, then they came back, और खुदावन यीशु मसीह के दौर तक भी जो हेरोदिस बादशाह था, वो चूंकि he was a puppet king appointed by the Romans, so he was trying to winning the hearts of the local people, and he was spending some money in the construction of the second temple,
तो सेकंड टेंपल भी अभी इमारतें क्या हो रही थी, बन रही थी। तो वो जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे, यहाँ जो लोग आए हुए थे, क्योंकि जब ईद हो रही थी आपको पता है यरूशलेम वाज पैक्ड, लाखों की तादाद में यहूदी वहां मौजूद होते थे। तो यीशु मसीह ने एक और एग्जांपल दी कि भाई ये तो चलो उनका तो पिलातूस के सिपाहियों ने समझा, जासूसों ने समझा कि ये लोग हमला करने आए हैं, उन्होंने उनको मिला दिया है, लेकिन व्हाट्स हैपन टू अनदर ग्रुप जिसमें 18 लोग, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, शलोक का बुर्ज बन रहा था, वो बुर्ज नीचे गिर पड़ा और 18 बंदे मर गए। तो तुम्हारे ख्याल में क्या वो यरूशलेम के बाकी रहने वालों से ज्यादा गुनाहगार थे? इनका नो, अगेन नो। व्हाई? बिकॉज मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम भी क्या होगे, ऐसे ही मारे जाओगे। इट मींस हादसा होना, एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना, किसी गलत मौके पर गलत जगह पर मौजूद होना और लोगों से लुट जाना, ठीक है, यहां आपके साथ किसी किस्म का इंसिडेंट हो जाए, दैट इज अ मोमेंट वी कैन नॉट से दैट दिस इज बिकॉज दे वर मोर सिनर्स, बल्कि we as a human being are same in God's sight if we are not going to repent. अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो खुदा के नजदीक हम सब ऐसे किसी न हादसे में क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। Then Jesus Christ gave them a parable. अच्छा, पैराबल आपको पता है कि अच्छा यहूदी रब्बियों की और किसी भी सेजस की आप देखना चाहे वो कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई अच्छा जो है वो टीचर हो, वो कभी भी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगा। वो हमेशा होमवर्क देगा स्टूडेंट्स को कि जाओ जाके ढूंढो, ठीक है। वो कोई ना कोई क्या करेगा, तमसील, कोई स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। आपको पता है मत्ती की इंजील में शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा, भाई लोग तुझसे बातें करते हैं, पूछते हैं आकर, तू उनको कहानी सुना देता है, ठीक है, और फिर उसका मतलब भी नहीं बताता। और मतलब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हमेशा प्राइवेसी में बताते हैं, ठीक है। इस तमसील का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं कहा भाई तो क्यों, व्हाई यू आर टेलिंग देम स्टोरीज, व्हाई यू आर यूजिंग पैराबल्स? यीशु मसीह ने क्या कहा? These parables are the keys to kingdom mystery. ये आसमान की बादशाही के क्या हैं? भेद हैं। These are mysteries. और ये भेद जो हैं हर बंदे के हवाले नहीं किए जा सकते। You cannot give the precious keys of any treasure to a common person. आप उन्हीं को दोगे जो कि इस काबिल हैं कि उनको वो कीज क्या की जाए, दी जाए। That's why Jesus said, Matthew chapter 13, I always teach and talk with them in parables. ताकि मैं उनसे भेदों की बात करता हूं। लेकिन मुबारक हो तुम, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग मुबारक हो। Why? क्योंकि ये जो बातें मैं तुम्हें आज कहता हूं, जो भेद मैं तुम्हें दे रहा हूं, किंगडम की कुंजियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, बड़े नबियों को, बड़े लोगों को आरजू थी कि वो ये बातें क्या करें, वो सुने, लेकिन ना सुन सके। Now you are blessed that you are listening and understanding. और वही कंटिन्यूटी आज चर्च के पास है, कलीसिया के पास है, ठीक है। तो उसमें फिग ट्री जो है, अंजीर का दरख्त जो है, वो उसका बड़ा अहम किरदार है खुदा की बादशाही में और खुदा की बादशाही के भेदों को अनफोल्ड, अनपैक करने के लिए, ठीक है। तो फिग ट्री की एग्जांपल क्या है? तमसील कई किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। अच्छा, ये अंजीर है क्या? जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि बाइबल मुकद्दस खासतौर पर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अंजीर और फिग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिव, स्पेशली खुदा ने कहा कि ऑलिव जो है वो किसकी मिसाल है? इसराइल, मेरे लिए जैसे ऑलिव होता है। लेकिन ऑलिव के साथ साथ जो फिग है, जो अंजीर है, उसके बारे में कहा दैट इज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको कहते हैं? जिससे किसी चीज को क्या किया जाता है? उसको नापा जाता है, ठीक है। और इसमें इसराइल की जो सिक्योरिटी, इसराइल की प्रॉस्पेरिटी और इसराइल की जो खुदा के साथ रिलेशनशिप था, उसको बैरोमीटर को नापने का जो आला था, जो खुदा ने जो इमेज यूज किया, दैट वाज फिग, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑलिव को उसकी पैमाइश करने के लिए कि ऑलिव कितना फल देगा, ऑलिव को कितनी खाद चाहिए, ऑलिव को कितना जो है वो पानी चाहिए, ऑलिव को कितना जो है उसकी केयर चाहिए, उसके लिए खुदा ने क्या चीज यूज की? इमेज फिग, ठीक है जी। अच्छा, कि जी पाकिस्तान था, एक अंजीर का दरख्त लगा, उसमें फल ढूंढने आया। सो गॉड ऑलवेज ट्राई टू सीक द फ्रूट। और फ्रूट क्या था बनी इसराइल का? फ्रूट ये था कि हाउ मच दे आर गोइंग टू ओबे गॉड। जैसे हमने न्यू ईयर की जो शाम थी, उससे मैंने आपके सामने योएल नबी का सहीफा, उसको मैंने खोला था। और आपको पता है कि योएल नबी के सहीफे पहले बाब में जो खुदा की जजमेंट जो आ रही थी टिड्डियों के वसीले से, या उनके वसीले से, जो क्या कहते हैं टिड्डियों को, क्या कहते हैं इंग्लिश में?
ग्रास हॉपर्स, लॉकस्ट, Locust. ठीक है। वो जो लॉकस्ट जो आ रहे थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमला किया उसमें क्या था कि अंजीर भी क्या हो गया है, मौकूफ हो गए, सीज, ठीक है। वाह, क्यों मज़बा खाली था? क्योंकि अंजीर का दरख्त की लकड़ी जो थी वो मज़बा के ऊपर आग के लिए दी जाती थी, ऑलिव नहीं जलाया जा सकता था, दैट वाज टोटली बैंड। यू कैन नॉट बर्न ऑलिव वुड ऑन द ऑल्टर। वाई? जैसा ने पहले कहा है, क्योंकि ऑलिव किसको रिप्रेजेंट करता है? Israel. इसराइल को। अंजीर की लकड़ी आप कर सकते थे, ठीक है। सो अंजीर रिप्रेजेंट लाइक दिस। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसमें फल ढूंढने आया और 3 साल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर खुदा इसराइल को, यीशु मसीह आए हैं बनी इसराइल के पास, वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे कबूल, रिजेक्टेड, ठीक है। 3 साल जो है ये यीशु मसीह की 3 इयर्स मिनिस्ट्री को क्या करते हैं? पेश करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान किसका है? खुदा का, ठीक है। अंजीर बैरोमीटर चेक कर रहा है, खुदा किसका? इसराइल का, ठीक है। और यीशु मसीह जो है वो क्या है? बागबान है। एंड ही केम, और वो 3 सालों से आ रहा है। 3 सालों से मतलब वो यीशु मसीह 3 साल की मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो उसको ढूंढ रहा है लेकिन फल नहीं पाता। इस पर बागबान से कहा, देख मैं 3 वर्ष से अंजीर ढूंढने आता हूं और इसे क्या कर दे? गॉड इज गोइंग टू रिप्लेस दैट। अच्छा, रिप्लेस का मतलब ये याद रखिएगा, इसराइल को खुदा ने कभी भी टोटली कभी भी खुदा ने मलियामेट नहीं किया। आप 5000 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। इसराइल के जो कंपैरेटिव कौमें थी वो आपको कोई नजर नहीं आएगी आज। सिर्फ एक एंशिएंट कौम अगर मौजूद है, वो क्या है? इजराइल। क्वीन विक्टोरिया ने अपने एक उससे वजीर से कहा, प्रूव मी दैट गॉड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन अ वन वर्ड, ठीक है। मैं कहा, तू बड़ा पढ़ा लिखा, तू बड़ा स्कॉलर है, मुझे एक लफ्ज में बता कि खुदा एग्जिस्ट करता है। उसने कहा, जी इसराइल। क्या जवाब दिया उसने? इसराइल। ने कहा, इजराइल इज द प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट। वरना बाबली असीरी से लेकर फिर रोमन मैसाकार, फिर एस्टर मल्का की किताब, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फिर हॉलोकॉस्ट को अगर आप गिन लें, तो ये पॉसिबल नहीं था कि डिवाइन इंटरवेंशन के बगैर इसराइल जो है वो दुनिया में क्या कर सके? अपने आप को सस्टेन कर सके। सो दैट वाज द स्टोरी ओवर देयर। कि 3 वर्ष से ढूंढना हूं, इसे काट डाल। अच्छा, इसका मतलब ये है, काटने का मतलब ये है, खुदा ने बार बार ये टर्म इस्तेमाल की है इसराइल के दरख्त की, लेकिन खुदा क्या करता था? खुदा कहता था, जी तू इसे जब काटेगा तो उसका बकिया बचने देना, उसका जो स्टॉक है, ठीक है, जो नीचे उसका जो तर्जमा किया गया कि उसका जो टुंड है वो क्या रहना चाहिए? वो बरकरार, क्योंकि बकिया वापस आएगा। So God always punished, God always judged Israel, लेकिन खुदा ने क्या किया? हमेशा उसका बकिया क्या रहने दिया? बाकी रहने दिया, and they will come back. तो जब ये कहा जा रहा है ना कि इसे काट डाल, इसका मतलब ये नहीं कि तो टोटली इसकी जड़ें उखाड़ डाल, बल्कि क्या कि वो लोग जो के खुदावंद के इस प्लान को कबूल नहीं करेंगे, उनको क्या कर? छांट दे, उनको काट डाल, ठीक है। So that is the understanding. उसने जवाब में से कहा, ऐ खुदावन इस साल तू और भी इसे रहने दे। अच्छा, ये जो साल है, इस साल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि आपको पता ना खुदावन के नजदीक एक दिन किसके बराबर है? 1000 ईयर, और 1000 ईयर किसके बराबर है? एक दिन के बराबर। सो गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम द ह्यूमन काउंटिंग, ठीक है। सो जो साल है, दिस ईयर, दैट्स इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस को? जब पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है, ठीक है। ने क्या कहा था? शाबाश शमौन बरयूना, कि ये बात तुझे खून और गोश्त किसी इंसान ने नहीं बताई, बल्कि यू हैव डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम गॉड। और मैं भी क्या करूंगा? मैं इस कन्फेशन के ऊपर क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया। आई विल एस्टैब्लिश माई चर्च ऑन दिस कन्फेशन। ये जो साल है मेरे अजीजों, ये साल रिप्रेजेंट करता है चर्च को, द चर्च ईयर, ठीक है। चर्च जो है वो रीच आउट करेगा पूरी दुनिया को। चर्च जो है वो रीच आउट करेगा इसराइलियों को। चर्च जो है वो रीच आउट करेगा खुदा के मंसूबे, खुदा के प्लान को, जिसको इसराइलियों ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। कहा, जी मुझे 1 साल और दे, ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं इसके गर्द क्या खोलूंगा? खाद खोलूंगा, थाला खोदूंगा, मैं इसकी टेक केयर करूंगा, एंड अल्टीमेटली यकीनन ये दोबारा फलदार होगा, ठीक है। सो विटनेस का जो काम दिया था, जैसे आयत 43 बाब में लिखा है कि तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। दैट वाज अ डिजाइन डेस्टिनी। खुदा यशायाह नबी के वसीले फरमाता है, मैंने इन लोगों को इसलिए खल्क किया कि ये मेरी क्या करें? इबादत करें, ठीक है, और ये मेरे गवाह बने।
لیکن چونکہ انہوں نے خدا کی گواہی کے جو کام تھا اس کو کیا کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. سو گاڈ ہیز چوز another نیشن, اور خدا نے نیشن سے خدا نے چرچ کو کھڑا کیا. ٹھیک ہے, سو سال ریپرزینٹ ا چرچ. تھالا کو دوں گا, اگر آگے کو پھلا تو خیر, نہیں تو کیا کر دینا, کاٹ دو. ٹھیک ہے جی. سو ٹیکنیکلی انجیر ریپرزینٹ, فگ ریپرزینٹ گاڈ ججمنٹ بیرومیٹر آن اسرائیل. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری ہے انجیر کے درخت کی, جس کو میں وائنڈ اپ کے لیے یوز کروں گا. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو سی, جب میں نے یہ بات پڑھی اور سیکھی اور دیکھی, میں جسے کہنا میں کرسی سے اچھلنے والا ہو گیا کہ واٹ از دس. ٹھیک ہے, مرکز کی انجیل 11ویں باب میں بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے, مشہور واقعہ یہ ہے کہ دیٹ از جیسس فائنل ویک ان دا جیروسلم. ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح جو ہیں وہ بیتنیہ سے جا رہے ہیں کہاں, یروشلم. رستے میں یسوع مسیح کو انجیر کا کیا نظر آیا, درخت نظر آیا. دور سے یسوع مسیح نے دیکھا, خوب ہرا بھرا اور جناب لگ رہا تھا کہ پھلوں سے لدا ہوا ہوگا. جب نزدیک گئے ہیں کوئی فروٹ ہی نہیں ہے. پہلی بار یسوع مسیح نے کسی چیز پر لعنت کی ہے, قرض کیا ہے, اور وہ کیا تھا, فگ ٹری. مطلب آپ یسوع مسیح سے لعنت ملامت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن یسوع مسیح کو غصہ آیا. ٹھیک ہے, the reason is this, میں نے کیا بولا, فگ کیا ہے, فگ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اسرائیل کو. اوکے, کیونکہ اور اسرائیل کی ریلیشن شپ کو, اسرائیل کی ورشپ کو. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا نیو ایئر کو کہ اسپرچل سچویشن, اسپرچل ہیلتھ ریپرزینٹ آور فزیکل ہیلتھ. اگر ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے تو ہماری فزیکل مٹیریلسٹک ایوری تھنگ ول بی گوئنگ ٹو بی اسموتھلی. ٹھیک ہے, یسوع مسیح ہیکل میں جانے والے ہیں, اینڈ ہیکل از اے ہارٹ آف اے جوش ریلیجیس ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, تو رستے میں یہ فگ ٹری یعنی یسوع مسیح کو اسرائیل نظر آیا. ٹھیک ہے, he went for with the expectation of fruit, لیکن نہیں ملا. کیا کہا یسوع مسیح نے, آئندہ سے تجھ میں کوئی پھل نہ لگے. اچھا, اس کے بارے میں مختلف اسکالرز اپنے سر اسکریچ کرتے ہیں, بڑے بڑے مختلف قسم کی تھیوریز ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, کہ why did Jesus curse the fig tree, اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ فگ ٹری کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اسرائیل کو. ٹھیک ہے, اچھا خداوند یسوع مسیح کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کہاں گئے ہیں, یروشلم میں, اور کہاں پر, ٹیمپل میں. اینڈ ہی کلینز دا ٹیمپل. یسوع مسیح نے ٹیمپل کو کیا کیا ہے, پہلی بار یسوع مسیح نے رسیوں کا کوڑا بنا کر تو کیا کیا ہے, جو بزنس جتنے وہاں لگے ہوئے تھے. اچھا, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہیکل کو سمجھنا ہوگا کہ یسوع مسیح ہیکل واز اے ہیوج ٹیمپل. ٹھیک ہے, 3 بڑے حصے ہوتے تھے یہ ہیکل کے. نمبر 1 آؤٹر کورٹ, جسے غیر قوموں کا صحن کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جس میں صرف غیر قوموں کے لوگ اس تک آ سکتے تھے. اس کے بعد شروع ہوتا تھا اسرائیلیوں کا یا جوش کورٹ, جس کے اندر 2 پارٹ تھے, ایک طرف عورتوں کا حصہ اور ایک طرف مردوں کا حصہ. عورتیں سرٹن اور مرد سرٹن لیول تک جا سکتے تھے. اس کے بعد شروع ہوتا تھا جہاں پر کاہنوں کا علاقہ تھا, جہاں پر وہ قربانیاں پیش کرتے تھے, آپ کے بہاف پر قربانیاں. ٹھیک ہے, اور وہیں پر مذبح ہوتا تھا. اور مذبح کے بعد اندر آتا تھا ہولی آف دا ہولائز. ٹھیک ہے, پاک ترین مقام, جہاں پر پورے سال میں صرف ایک بار سردار کاہن انٹر ہو سکتا تھا, عام کاہن بھی اندر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح نے ہیکل کے کس علاقے کو صاف کیا ہے, آؤٹر کورٹ, جو کن کے لیے صرف غیر قوموں کے لیے تھا, کیونکہ ہیکل میں انٹری کا راستہ وہیں پر تھا. تو یہودیوں نے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی فقیوں فریسیوں کے ساتھ مل کر, دے میک اٹ والمارٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے والمارٹ بنا دیا تھا. اور والمارٹ کیسا بنایا تھا کہ کیونکہ انٹرنیشنل لوگ بڑے آتے تھے, انٹرنیشنل یہودی آ رہے تھے. اب منوپلی وہاں پر یہ تھی کہ جی آپ نے اگر جانور خریدنا ہے قربانی کے لیے تو وہ آپ یہیں سے خریدیں گے. اگر آپ نے پیسے چینج کروانے ہیں تو ایئرپورٹ سے نہیں کروائیں گے, آپ کہاں کروائیں گے, آپ ہیکل میں آ کر کروائیں گے, اور وہاں پر وہ ان سے ڈبل ٹیکس لیتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو جانور بھی, جس بندے نے جانور کو, جس کاہن نے جانور کو پیس کرنا ہوتا نا, کہا یہ ٹھیک ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, کوئی اس میں داغ نہیں ہے, اس کے دانت بھی ٹھیک ہے, پیر بھی ٹھیک ہے. اگر اس بندے نے آپ کے جانور کو کیا کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ واپس جاؤ اور نیا لے کر آؤ. ٹھیک ہے, سو دیٹ واز دا مونوپلی اوور دیئر, دا ہول بزنس واز دیئر. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بھائی, یسایہ نبی کو کوٹ کیا, یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر قوموں کے لیے دعا کا گھر کرایا گیا, اینڈ یو میک اٹ اے ڈین آف تھیوز.
تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو تم لوٹ رہے ہو لوگوں کو اصل میں, ٹھیک ہے. ایک تو تم جو غیر قوموں سے جو انٹرنیشنل ٹریفک آتی ہے جیوش لوگوں کی, ایک تو تم ان سے ڈبل ٹیکس دیتے ہو, ڈبل پیسے دیتے ہو, ٹھیک ہے. اوپر سے جس پرپس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس کو تم نے ٹوٹلی کیا کر دیا ہے, کرپٹ کر دیا ہے. تم نے غیر قوموں کو جو گواہی دینی تھی, تم نے جو غیر قوموں کے لیے اسپیس فراہم کرنا تھا, وہ تم نے ٹوٹلی بلاک آؤٹ کر دیا. یو رادر دین بلڈ اے برج یو بیکم اے بیریئر ٹو دا نیشنز. So I'm going to reject you. I'm going to cleanse that. ٹھیک ہے جی. So curse and cleansing. That's why cleansing followed by the curse. The fig tree. Fig tree کون ہے؟ بیرومیٹر. اسرائیل کا بیرومیٹر ہے کہ یہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے خدا کے ساتھ, ریلیشن شپ کیا ہے, ٹھیک ہے. Now here's the concluding point. First century Judaism جو تھا, فرسٹ سینچری جوڈائزم, یاد رکھیے گا, سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس دور میں جو ربینیکل سسٹم بنا, تالمود اس دور میں آئی, مشنا اس دور میں آئی, ربینیکل جو سسٹم تھا اس دور میں آیا. فقی, فریسی, اسینیس, صدوکی, سیڈیوسیز اور جو کیا اسے کہتے ہیں سامری, these were the people those who developed that time. اور اس دور کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز اتنی کرپٹ تھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ دیکھیں گے جان دا بیپٹسٹ کیا لفظ یوز کرتا ہے, اے سانپ کے بچوں. اوہ مطلب ایسے نہیں جیسے آج کے دور میں کسی نے کتے کا بچہ کہہ لو, مطلب کسی کو ڈائریکٹ گالی نکالو, ٹھیک ہے. کیونکہ اسنیک واز ریلیٹڈ ود دا ڈیول, ود دا ایول, خدا کی حضوری سے خارج بائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہارش نبی تھے, یا جو خدا کے جو نبی جو جان دا بیپٹسٹ اور یسوع مسیح, آپ دیکھیں گے ان کی کبھی بھی ان کی ہمیشہ ٹسل رہی ہے ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دے نیور ایور ٹالریٹ ود دا اسٹیٹس کو, ٹھیک ہے. دیٹس وائی دے ہیو بین پروٹیسائزڈ. ان کو قتل کروا دیا, دونوں کو قتل کروایا گیا. یوحنا اگر سلیب اڑا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح کو کیا کر دیا انہوں نے, سلیب کروسیفائی کر دیا. اوکے جی. سو سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم کے اندر جو فگ ٹری کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی تالمود کے اندر, تالمود واز دا book of the story and interpretation after Babylonian captivity, ٹھیک ہے, بابلی سیری کے بعد. اس میں ایک کتاب تھی جی, لٹریچر اویلیبل تھا فقیوں کی طرف سے, اس کا نام تھا دی بک آف لائف فرام دا گارڈن آف ایڈن. وہ کتاب اویلیبل تھی, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایو ہے, ایو نریٹ کرتی ہے, لکھا ہوا تھا کوٹیشن مارک کے اندر, ایو کہتی ہے, اور جو آج کا ہمارا پہلا ریفرنس تھا پیدائش کی کتاب, ٹھیک ہے جی. سو وہ بک ریفر کرتی تھی اس حوالے کو, اس چیپٹر کو, تیسرے باب کو, جس میں ہوا جو ہے وہ پھل کھاتی ہے. ویسٹرن ورلڈ کے اندر اور تصویروں میں آدم اور ہوا کیا کھا رہے ہیں, ایپل, ٹھیک ہے. وائی ایپل, کسی کو پتا کیوں؟ وائی اونلی ایپل ہیز بین پورٹریڈ اونلی ان دا ویسٹرن ورلڈ. آپ کو پتا کیوں؟ بزنس. کیونکہ نارتھ امریکہ کے اندر بھی, ٹھیک ہے, اور ویسٹرن پوری ورلڈ کے اندر جو سیب تھا, دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی این فروٹ جو کہ بزنس بڑا کیا کرتا تھا, اور اس بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایپل یوز کیا گیا. یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایپل, میں بھی ایپل کا لیپ ٹاپ یوز کروں, آئی فون سارا ایپل. وائی دے براٹ دا ایپل, اور ایپل بھی آدھا کھایا ہوا, ٹھیک ہے نا. This is only in the Western. This is not a biblical. بائبل مقدس میں کہیں سیب کا ذکر ہی نہیں ہے پوری پیراڈائز کی سٹوری میں. Never ever. کس پھل کا ذکر ہے؟ زیتون, انجیر. That's interesting. ٹھیک ہے. تصویریں, کارڈ سارے کیا پیش کرتے ہیں؟ ہوا بی بی کی کھان رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی کھلا رہی ہے ساتھ میں, آدم کو بھی, ہے ٹھیک ہے. حالانکہ اوریجنل سٹوری میں ایپل کا دور دور تک نام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ سینچری کا وہ جیوش بک جو تھی, بک آف لائف, اس میں ہوا جو ہے, ایو جو ہے, وہ نریٹ کر رہی ہے, اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی کہ جب میں نے وہ پھل کھایا تو میری جو راست بازی کا جو میرے کپڑے تھے, راست بازی کے کپڑے جو تھے وہ کیا ہو گئے, وہ اتر گئے, اور میں خدا کی نگاہ میں گناہگار ہو کر میں اسپرچولی جو تھی میں نیکڈ ہو گئی. اور کہتے ہیں پھر میں نے اسی درخت کے پتوں سے اپنے لیے جو انڈر پینٹس تھے یا جو میرے انڈر ویئرس تھے, ان کو میں نے کیا کیا, ان کو میں نے بنایا, اور وہ درخت جو تھا وہ انجیر کا درخت تھا.
इसी को बैकअप करता है पैदाइश की किताब का तीसरे बाब की 6 आयत, और वो क्या कहती है कि औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो क्या हैं, वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए क्या बनाई, लुंगियां बनाई। मतलब अपने सतर को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्या किया, दे कवर्ड दैट। ठीक है जी, इंजीर का दरख्त। इंटरेस्टिंगली, सो द गार्डन ऑफ ईडन mention only one fruit by name, and that is fig tree. So fig tree in the narrative of the fall, the story represent the tree of knowledge and evil. नेकी और बदी के दरख्त की पहचान जो है, that represent fig tree. और फिग ट्री जो है, इसको खाने के वसीले से दोनों को रियलाइज हुआ कि दे स्ट्रिप्ड आउट फ्रॉम गॉड्स प्रोटेक्शन एंड गॉड्स राइचियसनेस। ठीक है, अच्छा, नाउ इट्स अ कंक्लूडिंग पॉइंट। खुदावन यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को क्या किया? मार्क 11 में he cursed the tree. आइंदा से तुझ में फल, and then he cleansed the temple. ठीक है, ओके। नाउ अगले दिन जब लिखा मंडे को, जब वो वापस गुजरे हैं, पतरस ने तवज्जो दिलाई यीशु मसीह का, खुदावन देख वो दरख्त जिसको तूने क्या किया था, कर्ज किया था, वो सूख गया है, पत्ते वत्ते सब, और सिर्फ उसका क्या रह गया है, सिर्फ तना रह गया है। ठीक है, ओके। नाउ इंटरेस्टिंगली पॉइंट हियर, यरूशलेम से बाहर बैतनिया के रास्ते जब वो ऑलिव ट्री पर, ऑलिव माउंट ऑफ ऑलिव, याद रखिएगा, यीशु मसीह को जो मसलूब किया गया वो कहां पर किया गया? ऑलिव माउंट। ऑलिव क्या है? इजराइल। ठीक है, ओके। फिग ट्री है जिसने फॉल किया, जिसके वसीले से आदम और हवा कहां से निकले, और उन्होंने अपने आप को कवर किया। एक और दिलचस्प जो सिंबॉलिक मतलब है फिग का, वो है एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। ठीक है, फिग का सिंबॉलिक मतलब एक और क्या है? एक्सक्यूजेस। और आदम और हवा ने अपने आप को किससे कवर करने की कोशिश की? एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस। ठीक है ना, खुदा ने कहा क्यों खादा रे, मैं थोड़ी खादा, मैंने तो सप ने क्या ही। ठीक, सप, ठीक है ना। नहीं, खुदा ने किससे पूछा? आदम से, क्योंकि हेड कौन था? आदम। खुदा ने कहा हाँ भाई तू तेने मना किया थी, उन्होंने कहा मैं नहीं खाता, बीबी तू दी थी, मैं तो नहीं मंगी। ठीक है, इसने कहा रखा मैं तार खादा। उससे पूछा हाँ भाई तू दस तू करे चक्रांच पाई, उन्होंने कहा मैं थोड़ी खादा, मैंने तो सपने क्या मैं तार खादा। ठीक है, तो एक्सक्यूजेस, फिग रिप्रेजेंट आल्सो एक्सक्यूज, दैट्स व्हाई दे ट्राई टू कवर। अच्छा, एक मैं हॉर्टिकल्चरस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहता है जी ये बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आपने पैलेस्टाइन का फिग देखा है, उसके पत्ते अगर होते बड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो पत्ते जो होते हैं उनमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। कहते हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, अगर आपने उसके अंडरवेयर भी बनाए हैं, ठीक है, तो वो तो आपको टिकने नहीं देंगे, दे वर ऑलवेज पिंचिंग। ठीक है, दे आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, वो कहता है जी कि they were always on the penance. आपको पता ना what's the difference between the penance and the penitence? Penance का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ किया है, you have to face the consequence, और आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनकी ये तालीम है कि अगर आपने जैसे जब कन्फेशन करते हैं ना, फादर आई हैव डन दिस 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 दिस, ठीक है, पता ओके आपने जनाब 10 बार दुआ रबानी पढ़नी है, हमारे बाप 10 बार सलाम मरियम पढ़ना है, ठीक है, और आपने जाकर हफ्ते में कोई 10 दिन जो है ना फलां जगह जाकर चर्च में झाड़ू लगाना, पेनेंस। ठीक है ना, मतलब आपने उसका रीपे करना है। ठीक है, और एक होता है रिपेंटेंस, जिसमें यू कन्फेस, मैंने किया है, गॉड नाउ आई एम स्टक देयर, ठीक है ना, आई वांट टू टर्न बैक। सो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट कहता है आदम और हवा पहले दिन से पेनेंस पढ़ते, उन्होंने जैसे ही वो पत्ते पहने, हर वक्त पत्ते क्या करते थे उनको। खुदा ने कहा तुम्हारे पास का काम नहीं, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, देन गॉड प्रोवाइड देम व्हाट? स्किन ऑफ लैम्ब, भेड़ का, सॉफ्ट
और नरम, which covered their bodies and nakedness. That represent the temple and the sacrificial system. Now you getting the point? यीशु मसीह ने फिग ट्री को क्या किया? कर्स किया as a source of sin and death and separation from God. ठीक है? And then he cleansed the temple, which has been corrupted. Then he came back. What is the alternative then? What alternative system God is applying? उसी दरख्त को जो रात को क्या हो गया था? सूख गया था सर से लेकर पैरों तक. ठीक है? Scholars are agreed कि जिस दिन खुदावन यीशु मसीह को स्लीब दी गई है, यरूशलेम से बाहर निकलते हुए सिपाहियों ने वही दरख्त काटा है और उसकी स्लीब बनाकर यीशु मसीह को चढ़ाया है. So, यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आइंदा तुझ में फल ना लगे, एक्चुअली स्कॉलर्स एग्रीड कि खुदावन यीशु मसीह जो बागे अदन की कर्ज थी, बागे अदन का जो गुनाह था, बागे अदन की जो सेपरेशन थी, उसको यीशु मसीह रिस्टोर कर रहे हैं एज द सेकंड एडम. पौलुस रसूल ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कि यीशु मसीह क्या है? ही इज द सेकंड एडम, जहां से खुदा न्यू क्रिएशन का क्या कर रहा है? आगाज कर रहा है. तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने सिंबॉलिकली एंड स्पिरिचुअली ही अनडू the curse and the separation and the death and the sin of the paradise, and as a second Adam he totally undo and he provide the totally direct access and the relationship with God through his crucifixion and through his death on the cross. That is the symbol of the and the story of the fig tree, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने एज अ पैराबल के तौर पर इस्तेमाल किया है. पौलुस रसूल जब इसको वाइंड अप करता है, तो वो हमने जो आज का आखिरी वाला पढ़ा था, उसमें वो क्या कहते हैं? पौलुस कहता है जी कि जो इस्राएली हैं वो क्या हैं? दे आर ऑलिव ट्री. ठीक है? और वो कहता है 11 बाब के अंदर कि ऑलिव ट्री के अंदर मैं और आप एज अ नॉन ज्यूइश लोग होते हुए, गैर कौमें होते हुए, पेगन्स होते हुए, जेंटाइल्स होते हुए, वी हैव बीन ग्राफ्टेड. हम लोग ओरिजिनल जैतून नहीं है. Through the death of Jesus Christ, we have been grafted into that wild olive. ठीक है? वो क्या कहता है कि अगर उनका रिजेक्ट होना गैर कौमों के लिए दरवाजे खोल गया, तो उनका एक्सेप्ट होना क्या होगा? ठीक है? उनकी वजह से पौलुस रसूल क्या लिखता है जी आगे? कहता है कि इसलिए जो गैर कौम वाले हैं वो अपने आप को घमंड में ना लाएं. They don't need to boast about it. वो इसलिए कहता है कि तू उन डालियों के मुकाबले में फखर ना कर, यानी इसराइलियों के मुकाबले में. ठीक है? अगर फखर करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको क्या करती है? संभालती है. अब वो कहता है बस अच्छा तू कहेगा कि वो तो बेईमान हो गई. अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है. बस मगरूर ना हो बल्कि क्या कर? खौफ कर. क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़े. कहता है बस खुदा की मेहरबानी और तरस को देख. तो मेरे अजीजों, इसराइल को खुदा ने क्या कहा था? यू विल बी माय विटनेस. ठीक है? आपको याद है ईद पेंटेकोस्ट से पहले, आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या कहा था? तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे. यू विल बी माय विटनेस. द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसराइलियों को दी गई थी वो किसको सौंपी गई? चर्च को. तो याद रखिएगा, चर्च इज एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड on the Jewish faith and Jewish understanding of God's relationship. So Ecclesia or Israel or Jewish nation, they both are the witness of the God. ये दोनों के दोनों गवाही हैं. So मैं और आप इस नए साल के मौके पर खुदा ने चर्च को क्या कहा था? हमने जो तमसील पढ़ी थी पहली, तो इसे क्या दे दे? 1 साल और दे दे. बागबान ने, यानी चर्च को खुदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, ना सिर्फ इसराइलियों की बल्कि किसकी? पूरी दुनिया की. बस सब कौमों के पास जाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो. तो अगर चर्च जो है अगर वो फेल हो जाता है, तो मेरे जीजो पौलुस रसूल क्या कहता है? यू शुड बी अवेयर. खौफ कर. हाउ वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान एंड गॉड्स मिशन इन द 2021. दिस इज नाउ आवर चैलेंज. और अगर हम भी ना करेंगे तो फिर खुदा फरमाते हैं जजमेंट इज देयर. अगर खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो ये जो पेबंद की गई हैं, कहता है जी खुदा फिर उनको भी नहीं छोड़ेगा.
اسی لیے یعقوب ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ عدالت کہاں سے شروع ہوگی؟ خدا کے گھر سے. That's what we need to understand. Fig tree is a symbol of a barometer of our relationship with God. لیکن اسی fig tree کو symbolically جو ہے عدن کی پیراڈائز کی جو کرس تھی اس کو یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ آئندہ تجھ میں کوئی پھل، یعنی آئندہ سے خدا خود ڈائریکٹ اپنے لوگوں کو اپنی پہچان دے گا، اپنا نالج دے گا. They don't need to follow these secondary resources. God's spirit will going to dwell in our bodies. خداوند ہم کو اور ہمارے گھرانوں کو اور ہماری کلیسیاں کو اس نئے سال کے موقع پر اس بھید کو سمجھنے اور خدا کی بادشاہی کی گواہی کے لیے تیار کرے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے. اور میری گزارش ہے انکل جی مجھے سوری شکر گزاری کی دعا.